Jai Sri Ram students. In this video, we are about to discuss the doubts topic of 8th class mathematics. And after the doubt session will complete, students need to practice these questions. Okay, right? Let us start with this now. So first I'm taking exercise 2.2. Many student has asked a doubt from this. So first I'm taking second question, student. The question is, the difference between two numbers is 8. Okay, right. Difference between two numbers is 8. Okay. If 2 is added to bigger number, then the result will be 3 times more than the smaller number. Find the numbers. Okay, so see student, there are two numbers, right? One is smaller number, one is bigger number. Right, look at this rough work. One is smaller number, one is bigger number. Okay, students, with this, right? So, now, difference between two number has been given to us. So, look at this very carefully, everyone. Bigger number will consider as x. Okay, I'm writing here. Let bigger number is x. See student, as I said already, there are two numbers. So obviously one number will be bigger, one number will be smaller. No doubt about that. Getting with this point, everyone? One will be bigger, one will be smaller. So bigger number I'm considering as x. Is that clear with this point, everyone? Right? So what I'm doing, student, the first number is bigger number. That I'm writing here. And second number I don't know. Okay. So bigger number is x, second number we don't know. The difference between two numbers, that is bigger minus smaller. This is 8. Bigger number minus smaller number is 8. So this let us write as smaller number in rough column. So what will be smaller number here, students? See, can I send this minus smaller number right side? See, this minus s will go right side and 8 will come left side. Plus 8 will become minus 8. This will go that side, smaller number. Okay. So what is the smaller number? X minus 8. Then smaller number is x minus 8. सो बिगर नंबर x है तो स्मॉलर नंबर x माइनस 8 होगा. कैसे होगा वो समझ में आ रहा है स्टूडेंट सभी को यहाँ पे? राइट. तो बिगर माइनस स्मॉलर करूंगा तो 8 आना चाहिए. बिगर के जगह x लिख रहा हूं. राइट. स्मॉलर के जगह एस एन लिख रहा हूं. तो माइनस एस एन वहां जाएगा, मतलब माइनस स्मॉलर नंबर. 8 इधर आएगा तो माइनस 8 बनेगा. इस तरह स्मॉलर नंबर क्या बना? x माइनस 8. सो अभी देखो स्टूडेंट, बिगर नंबर आ गया, स्मॉलर नंबर आ गया. राइट. सो इन लोगों ने दे रखा है, इफ 2 इज एडेड टू बिगर नंबर, if 2 is added to bigger number, then it is equal to 3 times the equal number. Then result will be 3 times the smaller number. Okay, मतलब
बिगर नंबर में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो वो कितना होगा स्टूडेंट? स्मॉलर नंबर के 3 गुना, यानी कि 3 टाइम बढ़ के, राइट। सो अब देखो स्टूडेंट, बिगर नंबर क्या है? एक्स है। इसमें क्या ऐड करना है हमें? 2। तब ये किसको इक्वल होगा? 3 टाइम द स्मॉलर नंबर। तो पहले स्मॉलर नंबर लिख लो। स्मॉलर नंबर क्या है? x-8 है ना स्टूडेंट्स, राइट। सो 3 टाइम्स यानी कि इसको इंटू 3 करना। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट? तो अभी समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या क्या है यहाँ पे? ये पूरा इसको मैंने इस तरह लिखा भी, राइट। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व करते हैं। x+2 एज इट इज, 3 × x करेंगे तो 3x, माइनस 3 × 8 करेंगे तो 24। ओके, अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं स्टूडेंट्स। सी, फिर से स्टेप कॉपी कर रहा हूं। x+2 इज इक्वल टू, x+2 इज इक्वल टू 3x-24, 3x-24। अब यहां पे पहले x फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, x यहां रख रहा हूं, +3x को लेफ्ट साइड लाऊंगा तो -3x होगा, +2 को राइट साइड भेजूंगा तो -2। ओके, x-3x करूंगा तो -2x, -24 -2 -26, राइट। अब यहां पे माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2 13 जा, राइट। तो क्या बचा स्टूडेंट? लेफ्ट साइड में x बचा, राइट साइड में 13 बचा। सो देयरफॉर बिगर नंबर is x, that is x is nothing but 3। दैट मीन्स बिगर नंबर क्या है स्टूडेंट्स? 3 है। देन स्मॉलर नंबर क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर को क्या आता है इधर हमारे पास? x-8 है ना स्मॉलर नंबर, राइट। स्मॉलर नंबर क्या? x-8 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? x-8 लिखेंगे। तो x कितना है स्टूडेंट? 1 मिनट, यहाँ पे मैंने गलती से 3 लिखा, 3 नहीं 13 होना चाहिए। तो x की जगह 13 लिखिएगा, 13 - 8, राइट। तो 13 - 8 कितना होगा? 5। तो स्मॉलर नंबर कितना स्टूडेंट्स? 5 है। क्लियर है सभी को ये, राइट? चलिए ऑब्जर्व करिएगा इसे भी। ऑब्जर्व दिस एवरीवन। या ऑब्जर्व दिस एवरीवन। कोई बात नहीं करेंगे, इसे ऑब्जर्व करो अच्छे से सभी लोग, राइट। चलिए क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभी मैं लेने जा रहा हूं, जो कि थर्ड क्वेश्चन होगा स्टूडेंट।
See, what are those two numbers whose sum is 58 and difference is 28? So sum of the two number is 58 and difference is 28. So गिवन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सम ऑफ टू नंबर्स is 58. Difference of two numbers is 28. So we need to find both the numbers. Find both numbers. Okay students? Right. So हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे सिंपली लेट बिगर नंबर इज x, बिगर नंबर को x मान लेते हैं, देन स्मॉलर नंबर विल बी, बिगर नंबर को x मानेंगे तो स्मॉलर नंबर क्या होगा देखिएगा स्टूडेंट्स सभी लोग रफ कॉलम में। सी, एक बिगर नंबर एक स्मॉलर नंबर, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 58, राइट? और बिगर नंबर को हम क्या मान रहे हैं? x, राइट? तो ये x वहां जाएगा अगर राइट साइड में तो 58 माइनस x होगा, और ये ऐसा नहीं कि स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर कितना आया? 58 माइनस x आया। क्लियर है सभी को? राइट? सो स्मॉलर नंबर विल बी 58 माइनस x। समझ में आ रहा है सभी को? बिगर नंबर को हम x मानेंगे तो स्मॉलर नंबर 58 माइनस x आएगा। ओके? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो आ गया अभी, राइट? सो अभी एक और कंडीशन उन लोगों ने दे रखा है, देखिएगा। नाउ डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स, what is the difference? 28. Okay, difference of both number is 28. So bigger number minus smaller number is 28. Okay, difference यानी कि subtraction, इसलिए माइनस लिख रहा हूं। सो बिगर नंबर क्या है स्टूडेंट्स? x है। स्मॉलर नंबर क्या है? 58 माइनस x है। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है सभी को? अब क्या करेंगे? इसी को सॉल्व करेंगे। राइट? अब दिखेगा स्टूडेंट्स, इसे मैं कैसे सॉल्व करता हूं। इसी में कर देते स्टूडेंट पूरा चैप्टर का, इस पूरा टॉपिक। x माइनस 58, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस x इज इक्वल टू 28। सो x प्लस x 2x, 28, ए माइनस 58 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 58 होगा, राइट? सो 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी, सो 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8। सो अभी x चाहिए, तो 86 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 3 जा। सो x का वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? x का वैल्यू आ रहा है 43। सो देयरफॉर बिगर नंबर इज 43। x बिगर नंबर है ना, राइट? देन स्मॉलर नंबर क्या होगा? स्मॉलर नंबर इज 58 माइनस x, ये स्मॉलर नंबर है। सो 58 माइनस x की जगह 43 लिखो,
तो क्या आएगा 8 - 3 5 5 - 1 4 5 - 4 1 सो स्मॉलर नंबर इज 15 क्लियर है सभी को ये राइट चलिएगा सभी लोग इसे ऑब्जर्व करिएगा अभी ऑब्जर्व करिए सभी लोग चलिए क्लियर है यहां तक सभी को अब करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ स्टूडेंट द सम ऑफ टू कंजुगेटिव ऑड नंबर्स इज 58 फाइंड द नंबर्स सी कंजुगेटिव ऑड नंबर्स ये जरा रफ वर्क देखो स्टूडेंट सी यहां देखिएगा स्टूडेंट्स कंजुगेटिव ऑड नंबर्स यानी कि क्या होता है सी 1 और 3 ऑड नंबर है ना और एक के बाद एक आते हैं और 1 के बाद 3 आता है कौन ऑड नंबर्स में 7 और 9 भी ऑड नंबर है 7 के बाद 9 आता है ऑड नंबर की लिस्ट में तो दो ऑड नंबर जो एक के बाद एक आते हैं ऐसे नंबर्स को बोलेंगे कंजुगेटिव तो आप इन एग्जाम्पल्स में देखोगे तो 7 के बाद 9 कैसे आया होगा स्टूडेंट अगर मैंने अब देखिएगा 7 एक ऑड नंबर है उसमें सपोज मैंने +2 किया तो क्या आएगा अगला ऑड नंबर आएगा गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन राइट तो जनरली ऐसे होता है ये समझ में आ रहा है सभी को जनरली कैसे होता है इस तरह होता है ऑड नंबर गेटिंग मतलब कंजुगेटिव ऑड नंबर का मीनिंग समझ में आ रहा है 1 3 बोथ आर कंजुगेटिव ऑड नंबर्स राइट 5 एंड नेक्स्ट बोथ आर कंजुगेटिव ऑड नंबर्स सो ऑड नंबर्स लिखते समय अभी देखिए स्टूडेंट्स मैं इसे ऐसे मान के करना होगा मुझे सपोज मान लीजिएगा पहला ऑड नंबर x+1 है 193 का एग्जांपल लेता हूं तो 1 को हम x+1 मानेंगे ऑड नंबर राइट क्लियर देन इसका अगला ऑड नंबर होगा x+3 गेटिंग तो अब इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है स्टूडेंट 2 नंबर का डिफरेंस है इसी तरह हर कंजुगेटिव ऑड नंबर के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस होता है वो मैंने आपको यहां बताया राइट तो अब यहां पर ऐसे लिखना होगा लेट x+1 एंड x+3 समझ में आ रहा +1 + 3 क्यों लिख रहा हूं आर टू कंजुगेटिव ऑड नंबर्स राइट क्लियर सो अभी देखो स्टूडेंट दो कंजुगेटिव ऑड नंबर तो आ गए हमारे पास अब इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में कुछ बोल रखा है मैं क्वेश्चन में क्या बोला है सम ऑफ दिस टू कंजुगेटिव ऑड नंबर इज 58 सम ऑफ टू कंजुगेटिव ऑड नंबर्स इज 58 तो इसका मतलब ऑड नंबर का ऐड करने पर 58 आना चाहिए हमारे पास दोनों ऑड नंबर क्या है x+1 x+3 इन दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए 58 आना चाहिए गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन सो
एक्स प्लस एक्स, 2x होगा, 1 + 3 4 होगा, इज इक्वल टू 58। सो 2x इज इक्वल टू 58 - 4, जो कि 54 आता है। सो x इज इक्वल टू 2 नीचे चला जाएगा उस तरफ जाके, राइट। 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 1 7। सो x वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 7 है, बट हमें x वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ऑड और इवन चाहिए। सो देयरफॉर हमें दो ऑड नंबर चाहिए। फर्स्ट ऑड नंबर इज x+1 है ना स्टूडेंट्स, तो x की जगह क्या लिखेंगे? 7, 7 + 1। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? ओके, सो नेक्स्ट एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इधर देखिएगा, कम बैकवर्ड, राइट। अभी हम थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, इधर एक छोटा सा गलती कर दिया हम लोगों ने लिखने में, राइट। सो 58 नहीं दिया स्टूडेंट्स, उन्होंने 56 दिया है, राइट, क्वेश्चन में। और यहाँ पे ये बदल देंगे जरा सा, क्योंकि ये देखिए रॉन्ग आ रहा है, ऑड नहीं आ रहा, इवन आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई देखिएगा, ये वाला है, यहाँ पे 58 लिखा मैंने, 58 नहीं 56 लिखना है स्टूडेंट, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे अभी बदल देता हूँ, राइट। तो अब उसके कारण ये चीजें भी बदल जाएंगी, ये 58 आना चाहिए, ठीक है, ये सभी चीजें बदल जाएंगे स्टूडेंट। अभी इसे फिलअप करके लिख देते हैं फिर से, क्या आना चाहिए? 56 आना चाहिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 56 है, तो यहाँ पे 56, इवन ये भी क्या है? 56, इसलिए आंसर रॉन्ग आ रहा था। अभी करते हैं, अब ये 4 उधर गया, तो 56 - 4 होगा, 56 - 4 करेंगे तो कितना आता है स्टूडेंट्स? 52 आता है, और ये 2 नीचे गया, ओके। 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 यानी कि 6, 6 वैल्यू 6 है, x वैल्यू 26 है, राइट। सो यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 26, बट हमें x का वैल्यू नहीं चाहिए, राइट। हमें किसका वैल्यू चाहिए? ऑड नंबर, दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का। सो फर्स्ट, देयरफॉर फर्स्ट ऑड नंबर इज x+1, दैट इज इक्वल टू 26 + 1, जो कि 27 होता है। सो 27 एक ऑड नंबर है। गेटिंग विद दिस, देन फर्स्ट ऑड नंबर आ गया स्टूडेंट्स, देयरफॉर सेकंड ऑड नंबर इज x+3 है ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन x+1 था, सेकंड वन x+3 है, तो x की जगह 26 लिखो, +3 करो, जो क्या आएगा? 29। 29 ऑब्वियसली एक ऑड नंबर है, राइट। समझ में आया सभी को कैसे कर रहा हूं? राइट, चलिएगा एक बार इसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा सभी लोग, जो जो स्क्रीन पे लिख रखा है, एक 1 मिनट के लिए ऑब्जर्व करिएगा। ऑब्जर्व करिएगा सभी लोगों से, या बातें नहीं करना है। देखो अभी पनिशमेंट मिलेगा, जैसे 10th वालों को कल मिला था।
सो ये तो क्लियर है सभी को, राइट? बड़े आगे अभी, राइट? आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, सो एक मिनट स्टूडेंट्स, अभी कौन सा हो गया? ऑड इवन का हो गया ना, ये ऑड नंबर का हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन लेता हूं स्टूडेंट। सी, फिफ्थ क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सी, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल, नहीं, हाँ, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 777. So multiples of 7 students. So let 3 multiples of 7 be multiples of 7, यानी कि पहले वाले वो नंबर जो 7 के टेबल में डिवाइड होंगे, गेटिंग, या वो नंबर जो 7 से मल्टीप्लाई करने पर आएंगे। ऐसे भी दोनों वे में पढ़ सकते हो, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, 3 मल्टीपल्स चाहिए ना 7 के, पहले वाले को x मान रहे हैं, तो पहला वाला x होगा तो दूसरा वाला, अब देखिए स्टूडेंट 7 का टेबल देखिए, 7, 14, 21 ऐसे लिखते हैं। अब ये नंबर से जब हम इस नंबर को जाएंगे, कितना ऐड हो रहा है? 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, और 14 में 7 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 21 में 7 ऐड करेंगे तो 28 आएगा। मतलब हर बार हो क्या रहा है, हम हर बार 7 ऐड करते जा रहे हैं 7 के टेबल में, राइट? तो मल्टीपल्स ऑफ 7 को भी वैसे ही करना है, हर बार 7 ऐड करना है। तो पहला मल्टीपल ऑफ 7 को x मानेंगे, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 7 होगा। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट? तो तीसरा क्या होगा? x प्लस 7, ये दूसरा है ना, इसमें 7 ऐड करना, तो 7 प्लस 7 कितना होगा? 14 होगा। तो इसलिए तीसरे वाले को मैं डायरेक्टली x प्लस 14 लिख रहा हूं। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट? चलिए, ये बात क्लियर है। और क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि उन 3 मल्टीपल ऑफ 7 को ऐड करने पर 777 आ रहा है आंसर। इसका मतलब x प्लस 7, x प्लस 14, इनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 777 आना चाहिए। आई बात समझ में सभी को, राइट? 777 आना चाहिए इनको ऐड करने पर, राइट? सो अब इन्हें ऐड करेंगे, x प्लस x 3x, 7 प्लस 14, सभी में एडिशन नहीं है, देखो बाहर ऐड है ना, तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। और माइनस आया भी नहीं, राइट? माइनस आता तो चेक करना पड़ता कि प्लस करना है या माइनस करना है। अभी 7 प्लस 14 21, और यहाँ पे 777, राइट? सो 3x इज इक्वल टू 777 माइनस 21, तो कितना होगा? 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस नथिंग, दिस मच। सो नेक्स्ट स्टेप में ये 3 नीचे जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 756 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 बचा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। सो देयरफॉर x की वैल्यू मिल गई हमें, देयरफॉर x इज इक्वल टू 256। बट हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इन तीनों की वैल्यू चाहिए, राइट? सो देयरफॉर, नहीं तो ऐसे लिखेंगे, x आ गया, x प्लस 7 देखो, x यानी कि 256 प्लस 7 करो, 263 आएगा। नेक्स्ट x प्लस 14, x यानी कि 256 प्लस 14 करो, 270 आएगा, राइट? क्लियर है सभी को? देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 7 आर, सी, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, आर
256, 263, 270, ये तीनों क्या 7 के मल्टीपल्स है, यानी कि हम इन्हें 7 के टेबल में सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट विद दिस एवरीवन, राइट? चलिए सभी लोग ऑब्जर्व करिएगा स्क्रीन पे जो भी मैंने दे रखा है. सो होप सभी को यहां तक समझ में आया होगा, राइट? अगला एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट इसी टॉपिक पे का, इसी एक्सरसाइज का. फिर आते थोड़े ट्राइंगल्स की तरफ स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करके. सी स्टूडेंट, ये होगा क्वेश्चन नंबर 6. गिवन चीजें क्या है देख लीजिएगा स्टूडेंट्स. A man walks 10 kilometer, then travels certain distance by train, and then by bus as far as twice by the train. So, okay, see. एक बंदे को यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है स्टूडेंट्स. ओके, ये टोटल जर्नी कितना है स्टूडेंट? देखो, टोटल जर्नी है 70 किलोमीटर. ओके, और वो यहां से यहां तक जो कि 10 किलोमीटर है बाय वॉक ट्रैवल करता है. क्लियर? और यहां से यहां तक मान लो वो बाय बस ट्रैवल कर रहा है स्टूडेंट्स, और यहां से यहां तक बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहा है. क्लियर? अब देखो बाय वॉक कितना ट्रैवल कर रहा है 10, बाय बस कितना ट्रैवल कर रहा है ये दिया नहीं क्या, तो हम बाय बस को x मान लेते हैं. एक्स डिस्टेंस, x किलोमीटर वो क्या कर रहा है, बस से ट्रैवल कर रहा है. और ट्रेन से कितना ट्रैवल कर रहा है स्टूडेंट्स, क्या दिया गया, ट्वाइस ऑफ बस, यानी कि बस से जितना ट्रैवल करेगा ट्रेन से उसका डबल ट्रैवल करेगा. तो बस से कितना ट्रैवल कर रहा है x, तो ट्रेन से ट्रैवल करेगा x का डबल यानी कि 2x, राइट? डबल यानी कि इंटू 2 करना होता है. गेटिंग? राइट. सो टोटल 70. समझ में आ रहा है ये डायग्राम? रफली आपको भी ऐसे लिखना है. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वॉक is 10 kilometer. Let x be the distance traveled by bus. So x कैट बस से ट्रैवल करे से डिस्टेंस है. So 2x will be the distance traveled by train. So अगर बस से x ट्रैवल कर रहा है तो ट्रेन से डबल ट्रैवल करेगा 2x. टोटल डिस्टेंस इज 70 किलोमीटर. क्लियर है ये? राइट. देन हमें क्या फाइंड करना है, हाउ फार डिड ही ट्रैवल बाय ट्रेन. सो हमें फाइंड करना है 2x. हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, 2x. डिस्टेंस ऐसे लिख लेते हैं, डिस्टेंस
ट्रैवल्ड बाय ट्रेन फाइंड करना है, मतलब 2x फाइंड करना है स्टूडेंट्स। क्लियर है सभी को? राइट। चलिए एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन, क्या क्या मैंने यहाँ यूज किया है, कैसे मैंने इसे एलॉबरेट किया, अच्छे से देखिएगा सभी लोग। अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा इसे एक 1 मिनट के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है स्टूडेंट्स। आज आपको एग्जाम में लिखना है, अच्छे से फॉलो करिएगा। थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देता हूं। ताकि मुझे लिखने के लिए जगह मिल जाए। राइट, ऑब्जर्व कर रहे हो क्या क्या बोल रहा हूं वहां पर? चलिएगा स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 70 किलोमीटर, राइट। अब टोटल डिस्टेंस में क्या क्या आता देखिएगा। ये ट्रेन यहां लिख रहा हूं बाजू में, राइट। टोटल डिस्टेंस 70, टोटल डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वॉकिंग प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, इसी को टोटल बोलेंगे। ये तीनों से मिलकर उसने जितना भी जर्नी ट्रैवल किया सब टोटल डिस्टेंस बोलेंगे, राइट। अब बाय वॉक कितना ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर। बाय बस एक्स, बाय ट्रेन 2x इज इक्वल टू 70। अब देखिएगा स्टूडेंट, 2x प्लस एक्स 3x, इस 10 उधर जाएगा तो -10 बनेगा, राइट। So 3x is equal to 70 minus 10, 60. So therefore x is equal to 60 by 3. 3 1 जा, 3 2 जा, 0 as it is. So therefore x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? x is equal to 20 किलोमीटर। Okay. So therefore distance traveled by train is, ट्रेन के जरिए ट्रैवल कर सो डिस्टेंस कितना है? 2x है ना। सो दैट इज 2 इंटू 20। एक्स के जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? 20। सो कितना आएगा? 2 इंटू 20, 40 किलोमीटर। समझ में आया सभी को? राइट। चलिएगा इतना सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा सभी लोग। ऑब्जर्व करिएगा, बातें नहीं करना है, राइट।
चलिएगा, ये क्लियर है सभी को? राइट। अब थोड़े डायग्राम वाले क्वेश्चंस पे आते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट बिट, मैंने आपको अच्छा खासा समय दिया ऑब्जर्व करने के लिए, उस समय टाइम पास मत करिएगा। अब फर्स्ट बिट पे आते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट बिट में फर्स्ट क्वेश्चन, एक डायग्राम दिया गया और आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया। ए बी सी, ये पॉइंट डी है, राइट। और ये 123 डिग्री है, ये 56 डिग्री है, और ये एक्स डिग्री है स्टूडेंट्स। ओके, राइट। अच्छे से देखिएगा सभी लोग इसे, और यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बातें बिल्कुल भी नहीं करना है। गेटिंग? किसी को भी बातें बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से समझा रहा हूं। तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगा। जैसे कैसे भी अभी एग्जाम आने वाले, तो आपको रात तक कहीं बिठा लूंगा, 10, 10:30, 11 तक भी, अगर बातें करोगे तो। और आपके पेरेंट्स आने पर ही आपको घर भेजूंगा। गेटिंग? राइट। सो इस बात को अच्छे से समझो कि आपको बात नहीं करनी है, राइट। चलिए अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहां पर ये वाला वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर? इसको एंगल सी बोलेंगे शॉर्ट में, नहीं तो इसको एंगल 1 देंगे नाम, इसको एंगल 2 देंगे, राइट। नाम दे दो, इसे डायग्राम में ही कर दो। अब क्या काम करो, काम ऐसे करो, सॉल्यूशन में डायग्राम लिख दो आप लोग। ओके, तो इसको एंगल 1 लिख दो, डायग्राम के अंदर इसे 2 लिख दो। गेटिंग? ऐसे कर ले सकते, कोई बात नहीं। सो हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 शुड बी 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि ये दोनों मिला के स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो स्ट्रेट लाइन बोल के लिख दो यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, राइट। एंगल 1 123 डिग्री है, एंगल 2 नहीं मालूम। ओके, अब ये डिग्री लिखने की जरूरत नहीं, खाली 180 भी लिखे तो चलता। अब एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ये 123 राइट साइड में जाएगा तो माइनस बनेगा, राइट। सो यहाँ बोरो लेंगे, 10 - 3 7, ये 7 हो गया, 7 - 2 ऑब्वियसली 5, 1 - 1 0। सो देयरफॉर एंगल 2 कितना है? 57 डिग्री, राइट। समझ में आया सभी को? एंगल 2 कितना है स्टूडेंट? उसने नहीं दिया एंगल 2, एंगल 2 हमने फाइंड किया, 57 डिग्री, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसके बाद अब देखिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल 2 को एंगल सी भी बोल सकते हैं क्योंकि सी उन लोगों ने दे रखा है। ऐसे शॉर्ट में लिखना स्टूडेंट, एक्चुअली हमें दूसरे तरीके से लिखना भी होता है, बट शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, राइट। क्लियर? सो ये तीनों मिला के कितने होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? एक ट्राइंगल के 3 एंगल है, राइट। सो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180। सो एक ट्राइंगल में जितने एंगल्स होते हैं ना, 3 एंगल्स होते हैं, उन तीनों के एंगल को ऐड करने पर 180 आना चाहिए। इसीलिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, उस ट्राइंगल के एंगल्स बन रहे, इसलिए उनको ऐड करके मैंने 180 लिखा। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? अब एंगल ए कितना स्टूडेंट? 56, एंगल बी एक्स, एंगल सी 57 इज इक्वल टू 180। अब 56 प्लस 57 ऐड करेंगे, 7 + 6 13,
5 + 5 10 1 11, सो 113 हो गया इन दोनों को ऐड करने पर, और वहां पे 180। अब x इज इक्वल टू ये 113 वहां जाएगा, 180 माइनस 113, सो 180 माइनस 113 तो कितना आएगा स्टूडेंट? अभी देखो ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, 0 - 3 करना है बट नहीं होगा तो बोरो ले लेंगे, 10 - 3 7। अब 8 के पास से एक बोरो चला गया तो ये 7 हो गया, 7 - 1 6, और ये 1 - 1 0, सो देयर फोर x इज इक्वल टू 67 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, x का वैल्यू। समझ में आ रहा है सभी को? राइट। चलिए एक बार सभी लोग इसे ऑब्जर्व करिएगा फास्टली। ऑब्जर्व करिएगा सभी लोग। जल्दी से कोई बातें नहीं करेंगे, जस्ट ऑब्जर्व करेंगे इसे अच्छे से। लास्ट एक 30 सेकंड दूंगा, उसके बाद मैं इसे बदल रहा हूं, अगले स्लाइड में जाएंगे। चलो क्लियर है सभी को? अब आते हैं फर्स्ट बिट के सेकंड क्वेश्चन को। सो यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह दिया गया स्टूडेंट, डायग्राम को मैं सोल्यूशन में लिख रहा हूँ, राइट, क्योंकि उसे मैं यूज करूंगा आगे जाके। अब देखिएगा डायग्राम ऐसे दिया गया, ये 45 डिग्री है, ये 3x + 16 डिग्री है, और ये 68 डिग्री है, PQR। सो अभी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ये ट्रायंगल का सिंबल है शॉर्ट में, इन ट्रायंगल PQR। सो PQR में तीनों एंगल को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये कितने होने चाहिए? 180 डिग्री होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या ट्रायंगल के एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स, सो 180 डिग्री आना चाहिए। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है सभी को? राइट। सो एंगल P कितना है? 45, एंगल Q 3x + 16, डिग्री वो नहीं लिखेंगे अभी, बस एंडिंग में लिखेंगे डिग्री। एंगल R 68, यहाँ पे 180। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, 48 + 60, 45 + 68 करेंगे तो 8 + 5 13 होगा, 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 4 11, सो 113 ऐसे कर लेना है, प्लस 3x + 16 है ना, सो इन दोनों को ऐड करते हुए 6 + 3 9, 1 + 1 2, ये 1 एज इट इज। ओके। अब ये 127 राइट साइड भेजेंगे, 3x लेफ्ट साइड ही रखेंगे, 127 नहीं 129, इसको राइट साइड भेजेंगे तो -129 होगा, राइट। सो 3x इज इक्वल टू 10 - 9 1, 7 - 2 5 0 एज इट इज। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 51/3। सो 51/3 आ जब कैंसिलेशन पॉसिबल है, 3 1 जा 3 2, 3 1 जा 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 3 7 जा 21। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? सो हमें
एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 17 आ रहा है, राइट? सो देयरफॉर x is equal to 17. Getting with this point, right? चलिए सभी लोग इसे ऑब्जर्व करिएगा। तो कुछ इस तरह करना होता है स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को डायग्राम में दिए सब, राइट? चलिए समझ में आ रहा है सभी को? एक और क्वेश्चन ले रहा हूं स्टूडेंट इसी बिट में का। फर्स्ट बिट, थर्ड क्वेश्चन। देखते हो डायग्राम कैसा दिया इन लोगों ने। सी स्टूडेंट, डायग्राम कुछ इस तरह है। ओके, फोर्थ करवाता हूँ स्टूडेंट, थर्ड आप कर लीजिएगा। ओके, अभी देखिएगा स्टूडेंट, ऐसे डायग्राम दिया गया, राइट? तो मैं आपको एक बात यहाँ रफ में लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट, नीचे ऊपर। सी, दो लाइन दिए ना यहाँ पे उन्होंने, सो इसका मतलब ये दोनों साइड ऑपोजिट है, सॉरी वो दोनों साइड इक्वल है, राइट? सो इस ट्राइंगल में एक्स वाई जेड में दो साइड क्या है? इक्वल है। सो अब ये वाले साइड को ये ऑपोजिट एंगल है, और ये वाले साइड के लिए ये ऑपोजिट एंगल है, राइट? सो जब दो साइड इक्वल होते हैं ना स्टूडेंट, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो व्हेन टू साइड्स of a triangle are equal, then their opposite angles are also equal. क्लियर है बात सभी को? राइट? तो यहां पर ऑपोजिट एंगल्स क्या है? 2x + 7 और ये 40, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट? इसका पॉइंट मैंने यहां लिख रखा है, बस सिंपल है। अभी 2x यहां रख लेते, 7 वहां भेजते हैं। 2x 45 - 7 38, x is equal to 38/2। सो सिंप्लीफिकेशन इज स्टूडेंट, ये पॉइंट समझ में आना बहुत जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन को देखोगे तो खाली आपको लगेगा सर हम भी तो कर ले सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट यहां पर है जो मैंने येलो कलर बॉक्स में लिख रखा है, राइट? अब x के लिए से कैंसिल करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। सो देयरफॉर इस क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन में x का वैल्यू आया 19 डिग्री। उसके नीचे लिखो ये, देयरफॉर x is equal to 19 डिग्री। क्लियर विद दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है सभी को, राइट? चलिए अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा इसे। और कुछ स्टूडेंट्स पार्ट 1 11 चैप्टर ऐसा कुछ लिख रखे हैं। सी स्टूडेंट, आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कौन सा डाउट है वो, राइट? और कौन सा वो मुझे पता तो चलना चाहिए, राइट? अनिश और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ नाम लिख दिया टॉपिक का, उसका सब्जेक्ट नहीं लिखा डाउट्स की बुक में, राइट? नेक्स्ट टाइम वो गलती मत करिएगा। चलिए ये ऑब्जर्व कर लिया आप लोगों ने? क्लियर है सभी को, राइट? चलिए मिलते हैं अभी अगले क्लास में। नेक्स्ट डे से ही करीब एक घंटे का डाउट सेशन रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसा लगता है ना कभी कभी, राइट सर? पास चलते चलते गाने बजेंगे तो मजा आएगा, जरा डाइवर्ट ने, जरा लाइक फोकस ज्यादा लगेगा क्लास में, राइट? ऐसे कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स। क्लियर?
कितने लोगों को लगता है कि कुछ गाने चल रहे हैं तो मूड अच्छा लगता है, या वो होना चाहिए, बट क्लास के समय नहीं। और इसीलिए बोलता हूँ क्लास के समय दूसरी चीजों पे फोकस नहीं करना है, राइट। चलिए, अब होप सभी को समझ में आ रहा होगा। सी स्टूडेंट, याद रखिएगा, क्लास चलते समय कोई चीज नहीं करना, इवन आसपास गाने भी बजे तो इस पर ध्यान नहीं देना है क्लास चलते समय। क्लास चलने दो या रिविजन चलने दो। गेटिंग? चलिए, आज इतने प्रॉब्लम सुनना है सभी को और प्रैक्टिस भी करना है। व्हाट विद दिस पॉइंट एवरीवन? चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।